Welcome to the Muluka Academy. Myself Anil Kumar Skija. So today I will take class 9th and topic is triangles. So up till now what we have done that we have seen the congruent triangles, then we have creation of the various creations used for prove the congruency of two triangles. Then we have yesterday we have seen the properties of the isosceles triangle. Then now we have got inequality in a triangle. So topic is inequalities in a triangle. So what do you mean by inequality? That is which are not equal. So likewise we have got three sides in a triangle and three angles in a triangle. So when we have the equilateral triangle, all the sides are equal. When we have isosceles triangle, then two of its sides are equal. When the triangle is Sakhalin, so one of name of the triangle is Sakhalin. So none of the sides are equal. No side is equal. So we talk about these triangles when none of the sides are equal. They are inequality. Sides are unequal. So as the sides are unequal, so the angles are also unequal. And there is correspondence between the sides and the angles of the triangle. So first theorem is, if two sides of the triangle are unequal, then the greater side has greater angle opposite to it. So what we want to prove that? So property is, first, if two sides of a triangle are unequal, then greater side of triangle has greater angle opposite to it. So we will show this. So let us consider a triangle ABC in which AC is greater than AB. This is given to us, and what we need to prove? To prove if AC is greater than B is greater than angle C. So we have to show that angle B is greater than angle C. So now what we do? Pick a point, place a point D on line AC and join B to D. So construction is, plot a point on BC in such a way that these two are equal, that BD is equal to AD. Now we want to show that AC is greater than AB. Now we see that these two sides are equal. AD is equal to AB. AD is equal to AB. We have to prove this. We have to plot this. AD is equal to AB. So these two are equal. So first of all, let us mark these angles. Let this be 1 and 2, and we know that angle 1 is equal to angle 2. Why? Because since AD is equal to AB
by construction. And property, yesterday we did that angles opposite to equal angles, equal sides, sides opposite to equal angles so this is angles are equal, angles opposite to equal sides are also equal. So जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, दैट इज दिस वन AB और AD, AB और AD ये दोनों इक्वल हैं, AD और AB इक्वल है तो 1 और 2 भी इक्वल होंगे. ओके तो अब हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 इसको हम 3 ले लेते हैं, लेट दिस एंगल बी 3. नाउ एंगल 1 इज लेस देन एंगल 3. एंगल ABAD, एंगल 1 is less than angle 3. This is because in triangle ADB the exterior angle sum of two interior angles. So अगर हम 3 को ले, ये किसका सम होगा, 1 और एंगल A का सम होगा. हम तो A1 को ही कह रहे हैं ना, 1 प्लस एंगल A इज इक्वल टू 3. सो 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1. सो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, इसमें 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3. सो वी कैन से दैट एंगल 1 और 2 सेम है, एंगल 2 इज ग्रेटर देन, एंगल 2 इज लेस देन एंगल 3. So angle 1 is less than angle 3, and if we join this will be your, just wait for a moment. Now this angle C, if we look for this angle C, this is less than angle 2. This angle C is less than angle 2. Angle 1 is equal to angle 2. Angle C is less than angle 2. This in triangle BDC, this is CDB. What we have got, internal angle is less than, this is your exterior angle. So this will be the sum of these two angles. Obviously C will be less than angle 2. So now we can say angle C is less than angle 1, because from 1 these two are equal. Now C is less than angle 1, and again we can say that angle C is less than angle 1 plus angle DBC. बिकॉज C इज लेस देन एंगल 1, अगर उसमें एक और एंगल ऐड कर देंगे तो भी वो लेस रहेगा. तो यहां से हम क्या करें अगेन, तो इसको हम लिख सकते हैं फिफ्थ में, एंगल C इज लेस देन 1 और DBC क्या है, 1 और DBC ये हो गया हमारा एंगल B. एंगल C इज लेस देन एंगल B, हेंस प्रूव्ड. सो इसमें बहुत सिंपल सा काम है. हमने क्या किया है, ये प्रूव करना है जो भी ग्रेटर साइड होगी उसके सामने वाला एंगल ग्रेटर होगा. सो इसमें AC जैसे बड़ी है साइड AB से, ये हमें दी है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, ये वाला एंगल इससे बड़ा होगा. सो वी कैन लुक एट दिस, दिस इज योर ग्रेटर साइड. ये साइड हमारी बड़े वाली साइड है, ये कम वाली साइड है, तो इसके सामने जो एंगल होगा ये वाला,
angle B. Angle B is greater than angle C. So this we can prove it. So इसी तरह से हम आगे करते हैं। इसका कन्वर्स भी ठीक है, दैट इज अगर हमारी दो एंगल्स ग्रेटर एंगल के सामने वाली साइड ग्रेटर होगी, ये हमने प्रूव करना है। सो उसके लिए हम इसको अरेंज करते हैं, पहले रब करते हैं। सो अब इसका कन्वर्स करना है। कन्वर्स में क्या है? कन्वर्स ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल। सेकंड, कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी वन, दैट इज इफ टू एंगल्स of a triangle are unequal, then side opposite to greater angle is larger। तो अब इसमें हमने क्या करना है, ये हमें दिया है A B C, ये ट्रायंगल है, और इसमें हमें क्या दिया गया है, A इज ग्रेटर देन B। ये गिवन है एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। तो प्रूव क्या करना है? टू प्रूव इसके सामने वाली साइड क्या है, AC इज ग्रेटर देन AB। सो AB और AC के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया, हमें सिर्फ ये बताया गया है B C से ज्यादा है। तो पहले हम इसके तीन केस हो सकते हैं। जब भी दो लाइंस को कंपेयर करेंगे, देयर विल बी थ्री केसेस। कौन कौन से थ्री हो गए? एक तो वो इक्वल हो सकती है, AC ग्रेटर भी हो सकती है, AC लेस भी हो सकती है। दैट इज थ्री केसेस आर, फर्स्ट तो होगी AC इज इक्वल टू AB। तो फर्स्ट केस में अगर AB और AC इक्वल है तो क्या होगा? हमने जो प्रॉपर्टी की थी आइसोसेलेस ट्रायंगल में, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, तो इसमें क्या होगा, ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। तो एंगल B और C इक्वल हो जाएंगे, विच इज कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन है ना। हमें क्या दिया गया है, B इज ग्रेटर देन C, वो इक्वल नहीं है, वो ग्रेटर हैं। अब सेकंड क्या हो सकता है, AC लेस भी हो सकता है, AC कैन बी लेस देन AB। अगर AC लेस देन AB है तो क्या होगा, एंगल B जो C से लेस होगा। जैसे हमने किया था, इसमें AB बड़ा हो गया ना, AB के सामने C एंगल है, सो C एंगल B से बड़ा होगा, विच इज अगेन कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन। तो अब क्या बचा, बाय प्रॉपर्टी वन, जो हमने प्रॉपर्टी की है इससे पहले, उसमें हमने ये कहा था जो साइड्स ग्रेटर साइड है उसके सामने वाला एंगल ग्रेटर होगा। लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, हमें दिया है B और C, B ग्रेटर है C से, सो ये हो ही नहीं सकता B लेस हो C से। अब थर्ड ऑप्शन क्या बचती है, थर्ड इज AC is greater than AB, so hence proved। इसके लिए हमारे पास क्या होगा, एंगल B is greater than एंगल C, ये गिवन है हमें, तो इसलिए ये हमारा पार्ट प्रूव हो गया जो हम प्रूव करना चाहते थे इसमें। ओके, देन नेक्स्ट इज, इसमें आगे है, अब हमने ये प्रूव करना है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। सो थर्ड में क्या प्रूव करना है, द सम ऑफ टू साइड्स of a triangle is
greater than third side. सो इसमें हम क्या लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। अब इसको हम बी ए को प्रोड्यूस करते हैं आगे, दिस इज प्रोड्यूस्ड टू डी इन सच ए वे दैट देन ज्वाइन सी टू डी। सो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, हमने प्रोड्यूस बी ए टू डी सच दैट ये दोनों इक्वल होंगे, ए सी इज इक्वल टू ए डी। इसमें हमारे पास क्या है, ए सी और ए डी इक्वल होंगे। ओके, तो इसमें सभी एंगल्स को हम मेंशन कर सकते हैं। इसमें अगर हमारे पास ये एंगल है, इसको हम 1 लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, 1 और 2। हमें क्या दिया है, ए सी और ए डी इक्वल हैं। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दिस इज अगेन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। That is, the angles opposite to the equal angles are equal. तो अब इसमें क्या होगा, ये हमारा एंगल है 2 और इसमें हम लेते हैं, अगर इसमें ऐड करते हैं ये वाला एंगल C, सो हम ये कह सकते हैं C जो है, दिस वन C एंगल इज ग्रेटर देन एंगल 2। Or we can say that, let us take it in another form. 1 और 2 इक्वल है, अगर 1 में ये ऐड कर देंगे BCA, एंगल 1 प्लस एंगल BCA, तो ये क्या होगा, एंगल 2 से ज़्यादा होगा या कम होगा, इट विल बी ग्रेटर देन, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना, ये दोनों इक्वल थे, BCA हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। सो एंगल 1 प्लस BCA क्या हो जाएगा, DCB। DCB इज ग्रेटर देन एंगल 2 कौन सा है, एंगल BDC। BDC, सो ये यहां से ही लिख दिया हमने। अब हम देख सकते हैं इन ट्रायंगल BDC, सो हम क्या कह सकते हैं, अगर C और D में देखा जाए, C और D में C बड़ा है, तो इसके सामने वाली साइड क्या है, BD इज ग्रेटर देन, किससे ज्यादा होगी ये BD, BD इसके सामने कौन सी है, BC। ओके, ये फ्रॉम 3 कह सकते हैं। 3 में हमने क्या कहा, ये जो एंगल है इसको ऐड करके जो एंगल C बना, C इज ग्रेटर देन D। अगर C D से ग्रेटर है, इसके सामने वाली साइड BD जो ग्रेटर होगी किससे, BC से। अब BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD टोटल है BA प्लस AD, सो BA प्लस AD इज ग्रेटर देन BC। अब AD किसके बराबर है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन BA प्लस AC इज ग्रेटर देन BC बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये हमने शो कर दिया, सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसी तरह से हम ये लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव, तो इस तरह से हम ये भी कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, AB और AC को इससे किया, और AB और BC को कर सकते हैं, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, एंड AC BC और BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB। सो एक ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड का सम जो है वो थर्ड साइड से हमेशा ही ज्यादा होगा। सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सो वी विल कंटिन्यू विद दिस, बट बिफोर दैट we will rub this part. We will do questions based upon this.
Then next is we are given this question. इसमें हमने शो किया है इन फिगर में क्या दिया है हमें. क्वेश्चन 4, ये ट्रायंगल दिया हमें ए बी सी. दिस इज produced to D. This angle is 100 degree. This is 40 degree. तो इसमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव AB greater than AC. सेकेंडली फर्स्ट ये प्रूव करना है, सेकंड क्या करना है इसमें प्रूफ AB greater than BC. थर्ड BC greater than AC. सो पहले तो हम क्या करते हैं, डायग्राम को देखते हैं, फिगर को देखते हैं. फिगर में हमें क्या प्रोवाइड किया गया है, क्या इंफॉर्मेशन हमें दी है, तो क्या हम निकाल सकते हैं. अब ये हमें पता है दिस इज योर 100 एंड दिस मेक्स द लीनियर पेयर. सो अगर ये लीनियर पेयर बन रहा है तो ये एंगल कितना होगा, टोटल कितना होता है 180. सो 180 में से ये 100 निकाल दें तो क्या बच जाएगा, ये 80 बच जाएगा. सो दिस C इंटीरियर एंगल C इज 80 डिग्री. नाउ सम ऑफ दीज टू बिकम्स 120 एंड टोटल अगेन इज 180. सो ऑब्वियसली दिस विल बी योर 60 डिग्री. सो नाउ वी हैव गॉट द एंगल्स. नाउ वी कैन प्रोड्यूस द रिजल्ट्स वेरी इजिली. सो this is we have find the we did this part very earlier, very much times. Now what we want to show that first is AB is greater than AC. So for AB we will check for angle C and for AC we check angle B. C and B एंगल को चेक करते हैं. C 80 है, B क्या है, B is 40. So we know that solution हो गया from figure एंगल C is greater than एंगल B. सो क्या हो गया यहां से फ्रॉम फिगर, अब AC C एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड AB विल बी ग्रेटर देन AC. सो इसको 1 ले लें, फ्रॉम 1 मीन्स अगर C एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड ग्रेटर होगी एज पर द प्रॉपर्टी 1, एज पर प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी. सो इसी तरह से आगे देखा जाए तो क्या है, ये हमारा हो गया AB ग्रेटर देन AC. सेकेंड हमें क्या चाहिए, AB और BC को देखना है. AB और BC को, AB के लिए C चाहिए और BC के लिए A. सिंस वी नो दैट सेकंड में क्या है, एंगल C कितना है, एंगल C इज इक्वल टू 80 और एंगल A इज इक्वल टू 60. सो क्लियरली वी कैन हैव C इज ग्रेटर देन एंगल A. सो दिस विल बी AB इज ग्रेटर देन BC. सो सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया अगेन बाय प्रॉपर्टी 1 ऑफ इनइक्वालिटी. तो ये प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम मेंशन भी कर सकते हैं यहाँ पे, द ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट. जो भी ग्रेटर एंगल होगा उसके सामने ऑपोजिट कौन सी साइड होगी, ग्रेटर साइड होगी. ओके. अब थर्ड में क्या करना है, BC ग्रेटर देन AC. BC के लिए एंगल A चेक करेंगे. एंगल A इज इक्वल टू कितना है, एंगल A 60 और B क्या है, एंगल B इज इक्वल टू 40. सो क्लियरली A इज ग्रेटर देन एंगल B. सो इसका मतलब क्या हो गया, BC इज ग्रेटर देन AC. BC जो है AC से ग्रेटर होगा. अगेन बाय सेम प्रॉपर्टी, अगेन वी कैन गिव द रीजन, प्रॉपर्टी
one of inequality, that is greater angle has greater side opposite to it. So this is converse of your property 1, so which we have seen. Then next is question 5th is, so in this case we have to show that all the line segments that can be drawn to a given straight line from a given point outside it, perpendicular is the shortest. So इसमें क्या है, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, तो इसमें कोई भी एक पॉइंट लेते हैं P बाहर, तो यहाँ पे हम इसके कोई भी डिस्टेंस ड्रा कर सकते हैं. लेट दिस बी PM भी देयर, बट जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा n. वी हैव टू शो, टू प्रूव या टू शो, हम इसमें क्या करेंगे, Pn इज लेस देन Pm. ओके, तो अब इसमें हमारे पास क्या है, एंगल n इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और m तो 90 हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ट्रायंगल में हमारा टोटल जोड़ कितना होगा, 180. तो अगर ये भी 90 हो गया तो तीसरा एंगल तो बचेगा ही नहीं. तो हम क्या कह सकते हैं, इन ट्रायंगल PNM एंगल m इज लेस देन 90 डिग्री, और वी कैन से m एंगल इज लेस देन एंगल n, क्योंकि n 90 है ना. तो m के सामने कौन सी साइड है, m के सामने है Pn इज लेस देन n के सामने कौन सी है, Pm. अगेन बाय प्रॉपर्टी, सो वी कैन से दैट hence perpendicular distance of point is the shortest. So ये ऑब्जर्वेशंस हम लिख सकते हैं. इसके लिए हम यही कर सकते हैं, फ्रॉम दीज टू कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी 1. जो प्रॉपर्टी 1 थी हमने की थी, दैट इज द साइड्स ऑपोजिट टू द ग्रेटर साइड विल हैव द ग्रेटर एंगल, एंड द कन्वर्स ऑफ दिस विल बी, अगर इफ देयर आर टू अनइक्वल एंगल्स देन the side opposite to greater angle will be the larger one. So we can see that Pn will be always smallest. This will be the result there. So in this case we can draw any number of lines here. Let us say this is M1, this is M2, let this be M3. So we can generalize it. We are to only change the triangles. If we have to look for this, so always this 90 will be greater than this angle, or this angle, or this angle. So 90 will be greater, the side opposite to it will be larger. So these will be the hypotenuse. As we can see in a right angle triangle, hypotenuse is the largest one. So perpendicular has to be smallest, shorter than the hypotenuse. So in a right angle triangle, so we can otherwise also prove that in right angle triangle hypotenuse is greater than perpendicular. So we can say perpendicular distance is shortest. So this is what we want to prove here, so which we can show by using a concept of right angle triangle. So this is all regarding your today's part. I think you must have followed this, all the concepts of inequalities, and we are left with some more part in this.
which we will continue in the next lecture. So thank you for listening the lecture. So come with your problems if you have got any. So we can only know if you tell about your problems, we can solve them. So thank you very much for listening the lecture. Thank you.